Hello students, this is lecture 12 based on your unit 2. Okay, and this is also same lecture 24 according to your lesson plan of unit 3, because the content which I am going to discuss in this lecture are same. Okay, so this topic is repeated in 2 times. Okay, with slightly add on some part. Okay, so I am covering this lecture, both lecture in one. Okay, so the topic for this lecture is, first one is the logical effort path, delay in multi-stage logic networks, and logical effort for multi networks. Okay, so basically these two are your unit 2 and this topic is your unit 3, but these two topic, okay, they are same. Okay, ultimately we are calculating here delay for multi-stage network. Same thing we are calculating here delay with the help of the logical effort, क्योंकि जो टेक्निक we are using only logical effort. Okay, so multi-stage logic networks के लिए RC delay, Elmore delay, we already read about this. Okay, so another topic is logical effort. Okay, it will be same because we are calculating again. We use the logical effort for delay calculation. Okay, so these two topics are same. Okay, so now further going, logical effort of paths. Okay, सो जनरली जब भी कोई भी डिज़ाइनर जो हम आईसी डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके, तो डिज़ाइनर का मोटिव क्या रहता है कि जो हमारा सर्किट हो वो फास्ट हो. ओके, एंड सेकंड क्या होता है, एक तो स्पीड. जनरली तो हमारे तीनों होते हैं कि स्पीड, पावर एंड योर डिले. सॉरी, स्पीड और यू कैन से डिले, पावर एंड द एरिया. ओके, so as a designer, if we talk about the how to optimize the delay, तो ये हमारा कंसर्न होता है कि वो सर्किट जो भी हम बना रहे हैं वो फास्ट होना चाहिए, उसमें डिले कम होना चाहिए, और हम गेट साइजिंग कर सकें. गेट किस ट्रांजिस्टर को हमें उसका साइज़ बड़ा रखना है, किसका हमें छोटा रखना है, ताकि जो हमारी स्पीड वाला टर्म हो वो ऑप्टिमाइज हो सके. ओके, so this is mentioned in first point. Designer often need to choose the fastest circuit topology and gate sizes. Okay, because delay also dependent on gate sizes for a particular logic function, and to estimate the delay of the design, कि आपका जो सर्किट है उस सर्किट में ओवरऑल डिले कितना लग रहा है. ओके, so as a practically we have a lot number of techniques available. Okay, but mostly we use the simulation and timing analysis at the time when we are designing your topology. Okay, so here in second point it is mentioned, simulation or timing analysis are poor tools for this task because they only determine how fast a particular implementation will operate. Okay, so जब भी हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा लॉस क्या है कि ये आपको कैलकुलेट करके तो डिले दे देंगे, बट कंडीशन इज़ कि वो डिले ऑप्टिमाइज है कि नहीं है ये नहीं बताएगी. ठीक है, सपोज़ एक कोई पाथ है, वो आप पाथ का कैलकुलेशन करके आपको डिले दे दिया गया. ओके, बट फर्दर इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी कि इस जो पाथ है इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या कुछ हम मॉडिफिकेशन हम उसमें कर सकते हैं ताकि जो हमारा डिले हो वो और ज़्यादा होगा. मीन्स एक तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बताती, दूसरा उसका रीज़न भी आपको नहीं बताती. ओके, सो दैट्स वाई वी डू नॉट प्रिफर दिस टोपोलॉजी. ओके, so here simulation or timing analysis are poor tools for the task because they only determine how fast a particular implementation will operate. आपको वो डिले कैलकुलेट कर देगी, not whether the implementation can be modified
कि हम ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और फॉर बेटर रिजल्ट, एंड इफ सो व्हाट टू चेंज। ओके, सो दोनों ही कि ये नहीं बताती हमें कि हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी सिमुलेशन एंड टाइमिंग एनालिसिस में। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज द लॉजिकल एफर्ट। ओके, लॉजिकल एफर्ट क्या करता है, आपको बेस्ट जो आपका पाथ होता है, बेस्ट स्टेज, वी टॉक अबाउट द मल्टी स्टेज नेटवर्क, तो बेस्ट जो पाथ होगा, बेस्ट स्टेज होगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। सो नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, वो आपको लॉजिकल एफर्ट्स प्रोवाइड करा देता है। सो इन थर्ड पॉइंट इट इज़ मेंशन, लॉजिकल एफर्ट प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड टू चूज द बेस्ट टोपोलॉजी एंड नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ अ लॉजिक फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो दोनों टोपोलॉजी क्या होनी चाहिए बेस्ट, और नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी होनी चाहिए, उसकी दोनों की इंफॉर्मेशन। नाउ लॉजिकल एफर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम हमारा आया व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द लीनियर डिले मॉडल। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से आया है। सो बेस्ड ऑन द लीनियर डिले मॉडल, इट अलाउज द डिजाइनर टू क्विकली एस्टिमेट द बेस्ट नंबर ऑफ स्टेज फॉर अ पाथ, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस point, minimum possible delay for the given topology, and gate size that achieve the, so it will give also information about the कि what should be the size of the gate, ये भी information है। So these are the some benefits of the logical efforts। Okay, now we are using this logical effort for a path। Okay, in previous lecture we have discussed, we have calculated the logical effort for a gate only. Now we are talking about the paths। Okay, now in this figure 1 where I have taken one example, okay, for multi-stage logic network। Okay, suppose आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें नॉट गेट भी यूज़ हो रहा है। दिस इज़ योर नॉट गेट, दिस इज़ योर नॉर गेट, दिस इज़ नैंड गेट, दिस इज़ इन्वर्टर, एंड अगेन यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक कैपेसिटर। ओके, सो आपके पास मल्टी स्टेज हो गया, मतलब 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3, 4, ऐसे एक आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ओके, सो एज मेंशन द फिगर 1 shows the logical and electrical effort out of each stage in multi-stage path as a function of the size of each gate। Okay, so here we are talking about this G and G, where G is your logical effort and H is your electrical effort। ये हम previous lecture में discuss कर चुके हैं। Okay, so if you remember, ये G कैसे आता था, what is the definition of G, जो हमारा लॉजिकल एफर्ट होता था। सो लॉजिकल एफर्ट इज द रेशियो ऑफ द जो आपका गेट है, उस गेट का इनपुट, जो इनपुट कैपेसिटेंस है, डिवाइडेड बाय इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर। ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द जी फॉर नॉर इन्वर्टर, नॉर नैंड, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस जी। ओके, so obviously this is fixed for 2 input NOR gate, this is 2 input NAND gate. Okay, so G we can calculate in this way. Okay, now what is H? H is your electrical effort. Okay, that is equal to your C out upon C in, जो basically H होता है, that is C out upon C in, output capacitance divided by input capacitance। Okay, so if we talk about this portion only, okay, ये सर्किल मैंने बनाया, इस सर्किल की बात करें तो इसमें ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। सो लेट्स सी दिस इज H1। ओके, सी द वैल्यू ऑफ H1 इक्वल टू क्या होगा, C out upon C in। सो अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे आपको देखें इस इन्वर्टर गेट के लिए आउटपुट कहाँ पे होगा, दिस इज़ योर आउटपुट, दिस इज़ योर इनपुट। सो आउटपुट साइड के पे कैपेसिटेंस का क्या होगा, अगर इस साइड हम देखें तो ये वाला
जो इसका इनपुट होगा वो इसके लिए क्या होगा, इस इन्वर्टर के लिए क्या होगा, आउटपुट होगा. सो फॉर दिस इन्वर्टर सी आउट इज दिस एक्स, ओके, एंड इनपुट इज जो इसका 10 गिवन है. सो x by 10. Okay, now suppose if you want to calculate this, so for this C out क्या होगा, इस वाले का जो है y, okay, so y upon, और इस वेट का क्या था, x. So same in this way we can calculate. Now you can see here H4 equal to कैपेसिटेंस आउटपुट पे कोई गेट नहीं है, so कैपेसिटेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 20 divided by Z. Okay, so from here you can see that the logical effort is independent of size. कहीं भी हमारे गेट के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है. Okay, you can see in third point. So remember this point, logical effort is independent of the size. Size means गेट साइज की बात करें, although इलेक्ट्रिकल एफर्ट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है. So in previous lecture we talk about the only gate, now we are talking about the path. Okay, एक नेटवर्क है हमारे, उसमें हमें कैलकुलेट करना है. सो फॉर अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है, ओके, सो फॉर दिस नेटवर्क जो लॉजिकल एफर्ट है G, ओके, दैट G इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल GI, एंड दिस GI क्या है, जो भी आपके स्टेजेस हैं. ओके, सो उन स्टेजेस में जितनी भी स्टेजेस है सबका जो हमारा लॉजिकल एफर्ट है, ओके, सपोज n नंबर ऑफ स्टेजेस ओवर देयर, सो सारे स्टेजेस का हम लॉजिकल एफर्ट कैलकुलेट करेंगे, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट विल बी योर कैपिटल G फॉर अ पाथ. ओके, वहाँ पे आपने देखा होगा वी डिफाइन दिस G स्मॉल, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर कैपिटल G, क्योंकि अब हम पाथ की बात कर रहे हैं. सेम फॉर योर इलेक्ट्रिकल एफर्ट H. ओके, वहाँ पे होता था C आउट अपॉन C इन, क्योंकि एक ही लॉजिक गेट होता था, बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, पाथ की. तो C आउट फॉर पाथ, C आउट फॉर C इन फॉर पाथ. ओके, सो आउटपुट कैपेसिटेंस ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द पाथ. द path effort F is the product of the stage effort of each stage. Okay, so if we talk about the F is here. Okay, सारे आप देख रहे हो, we are taking the capital G, capital H, now capital F. So remember, if we are talking about the for path for multi-stage network, okay, so वहाँ पे कैपिटल में नोटेशन लिए हैं, जहाँ भी हम केवल गेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ओनली गेट, वन गेट, वहाँ पे हमने क्या लिए, सारे स्मॉल में नोटेशन लिए हैं. सो नाउ दिस F इक्वल टू क्या होगा, दिस G मल्टीप्लाई दिस H, यही होगा. जो हम गेट के लिए भी कैलकुलेट करते थे तो क्या होता था, F इंटू G, F इक्वल टू G इंटू H. सो सेम ईयर कैपिटल F इक्वल टू G इंटू H. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी राइट दिस F इक्वल टू G इंटू H डायरेक्टली, ओके, फॉर मल्टी स्टेज नेटवर्क. ओके, सो अल्टीमेटली क्या है, इफ यू रिमेंबर दिस F, ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि ये F क्या होना चाहिए, हर एक स्टेज का होना चाहिए. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Fi. Fi क्या है, जो भी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस का आपका पाथ एफर्ट. ओके, एंड दिस F इक्वल टू क्या होता है, GH. सो हमने Fi को क्या लिख सकते हैं, GI इंटू HI. Now the question, can we write this directly, F equal to G into H? Okay, so for this clarification I have taken this example over here. Okay, so in this two-way branch, okay, यहाँ पे क्या है, input है, we are giving input here, we are using 3 inverter over here, 1 2 3. Okay, you are giving input here, and here you are taking the output. Okay, and we are considering this path, dotted line. Okay, but you from here this point you can see यहाँ पे क्या है, 2 ब्रांच डिवाइड हो रही है आपके. ओके, सो मल्टी स्टेज की बात करें हम,
क्योंकि हमें कैलकुलेट किसके के लिए अब करना है, मल्टी स्टेज के लिए, जो हमें ये फॉर्मूला जो भी हम डिले कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर मल्टी स्टेज। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम डायरेक्टली जी इक्वल टू इस पॉइंट की बात करें, ओके, एफ इक्वल टू जी इंटू एच। ओके, सो फॉर पाथ, दिस पाथ, ये हमारा पाथ है पूरा, डॉटेड लाइन से आप देख रहे हो, दिस इज योर पाथ। अगर हम इस पाथ के लिए जी कैलकुलेट करें, ओके, सो जी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी, कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा, G1 इंटू G2। सो फ्रॉम हेयर यू नो कि G की वैल्यू इन्वर्टर के लिए 1 होती है, सो 1 इंटू 1 दैट इज योर 1। सो फ्रॉम हेयर you will get the 1 value. Now for H, okay, H your electrical effort for this path. Remember, we are calculating for this path. Okay, so with the definition, H की definition क्या होती थी, C out path upon C in path. Okay, so अगर हम इस path में देखें तो आउटपुट पे क्या है, दिस 90, और इनपुट पे क्या है, दिस 5, so 90 divided by 5, that is equivalent to your 18. Okay, now use this formula. अभी तो क्या किया हमने, पाथ के लिए कैलकुलेट कर लिया। Okay, so according to, if we have in this, like in this figure we have 2 stages. ओके, सो अगर हम स्टेज के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एफ आई मतलब GI/HI। सो इन दिस नेटवर्क वी हैव 2 पाथ, एक तो एक हमारा स्टेज ये है, एक स्टेज हमारा ये है, तो हमें दोनों के लिए कैलकुलेट करना होगा। सो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, अब जो हमारा क्या होगा वो क्या हो जाएगा, G1 H1 मल्टीप्लाई विथ G2 H2। ओके, ठीक है। सो जस्ट अ वेट मिनट, सो नाउ वी हैव फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव 2 स्टेज, एक ये है और एक है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर बोथ स्टेज। सो फॉर G1, ओके, अगर यहाँ पे देखें हम, ओके, सो फॉर इन्वर्टर G1 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 मल्टीप्लाई विथ, सपोज इस वाले पाथ, पहले हम इस वाली स्टेज की बात करें। ओके, सो H1 क्या होगा, C आउट अपॉन C इन। C आउट क्या है, 15 है, C इन क्या है हमारा 90 है C आउट, और C इन कितना है 15। सो 90 डिवाइड बाई 15। So here I can write directly this, I am writing directly 90 output capacitance divided by input capacitance. So 90 divided by 15, that is your 6. Okay, multiply with, this is for stage 1. Now हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। सो अगेन ये इन्वर्टर के लिए क्या होगा, जो हमारा G की वैल्यू क्या है 1, और अगेन क्या है, यू कैन सी हियर यू आर यूजिंग अगेन 90 and 15, so 6. So that is equivalent to 36. Means you cannot write directly F equal to G into H. You have to apply this formula. Okay. Okay. So for directly G into H, it was 18. When you apply this formula, the result is, output is your 36. Okay, so it is not equal to, we have to apply this formula for if you have multi-stage network. Okay, clear? Now delay in multi-stage, further उसी को कंटिन्यू करते हैं। we must, अगर अब हम बात करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस है। ओके, सो ऑब्वियसली वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर योर टर्म लाइक ब्रांचिंग, बहुत सारी ब्रांच है। ओके, सो वी हैव इंट्रोड्यूस हियर
branching effort B. Okay, now this B is nothing else C on path plus C off path upon C on path. So C on path means अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा पाथ हमने लिया था, तो इस पाथ में जो भी हमारा कैपेसिटेंस होगा वो C ऑन पाथ. ये हमारा ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पाथ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ C ऑफ पाथ. सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वन स्टेज. सपोज यू हैव नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ ब्रांचिंग. ओके, अगर आपके पास एक ब्रांच है तो हम ये यूज़ करेंगे. अगर आपके पास मल्टी ब्रांच है तो वी विल यूज़ दिस कैपिटल B इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दी ब्रांच एफर्ट. ओके, जितने भी आपके ब्रांच हैं उन सारी ब्रांच का जो एफर्ट आ रहा है ब्रांचिंग एफर्ट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. दैन इट विल बी ब्रांचिंग एफर्ट फॉर पाथ. सो अब अल्टीमेटली क्या देखें, पाथ एफर्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F इक्वल टू जो पहले G इंटू एच था उसमें हमने टर्म क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपिटल B, ब्रांचिंग एफर्ट. ओके, सो द फॉर्मूला इज F इक्वल टू G इंटू B इंटू एच. ओके, सो ओवरऑल पाथ डिले क्या होगा, सेम लास्ट टाइम पर जैसे हम लिखते थे DF प्लस P. ओके, सो दिस D इक्वल टू DI. ओके, DI मीन्स जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबका पाथ डिले. ओके, उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, DF प्लस P, वेयर DF इज योर जो हमारा पाथ डिले है, जितने भी हमारी है वो ब्रांच है स्टेजेस है उनके लिए. ओके, सो दिस एक्सक्यूज मी, एंड दैट इज इक्वल टू पाथ जो भी हमारा पाथ एफर्ट है. ओके, ऑल दिस स्टेजेस का जो भी आ रहा है उन सबका सम. ओके, सो पाथ एफर्ट डिले DF इक्वल टू जो भी हमारे जितने भी आपका स्टेज एफर्ट जो आ रहा है, ओके, उन सबका समेशन, दैट इज कॉल्ड योर पाथ एफर्ट डिले. ओके, एंड दिस इज द पैरासिटिक डिले. पैरासिटिक डिले भी सेम होगा कि जितने भी स्टेजेस है उन सबका इंडिविजुअल जो भी हमारा कैलकुलेशन में पैरासिटिक आ रहा उन सबको बाद में सम कर देंगे. सो दीज आर दी सम फॉर्मूला फॉर द पाथ डिले इन मल्टी स्टेज लॉजिक. Okay, now the path delay is minimized when each stage bear the same effort. Okay, in previous lecture I also discussed this point कि अगर कोई भी हमारा जो भी इस एक सर्किट है उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस हैं. ओके, सो हमारी जो कोशिश होती है एज ए डिज़ाइनर वो क्या होनी चाहिए कि जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबका जो है एफर्ट आ रहा है वो सेम आना चाहिए. ओके, अगर सेम आएगा तभी जो हमारा डिले होगा वो मिनिमाइज्ड होगा. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, द पाथ डिले इज मिनिमाइज्ड व्हेन ईच स्टेज बियर द सेम एफर्ट. ओके, सो सपोज हमारे पास n स्टेजेस हैं. ओके, ओके, अ पाथ हैज़ n स्टेजेस एंड ईच बियर द सेम एफर्ट. हम मान के चल रहे हैं कि सबका जो एफर्ट है वो सम सेम है. सो वी कैन राइट दिस स्टेज एफर्ट दिस स्टेज एफर्ट इक्वल टू GI इंटू HI. ओके, GI मतलब जितने भी आपकी स्टेजेस हैं उनका लॉजिकल एफर्ट और जितनी भी स्टेजेस हैं उनका इलेक्ट्रिकल एफर्ट. ओके, सो सपोज यू हैव n नंबर ऑफ, ओके, और n नंबर्स ऑफ जो भी है वो सेम एफर्ट बियर कर रही है, तो क्या हम लिख सकते हैं f टू द पावर 1/n. ओके, सो मिनिमम पॉसिबल डिले फॉर n स्टेज पाथ एफर्ट f एंड द पाथ पैरासिटिक डिले p इज जो डिले मिनिमम होगा पॉसिबल डिले दैट इज इक्वल टू जितने भी हमारे नंबर ऑफ स्टेजेस हैं मल्टीप्लाई विथ दिस f. ओके, जो आपने पाथ एफर्ट कैलकुलेट किया प्लस पैरासिटिक डिले. ओके, सो दिस इज द योर मेन की आउटपुट. ओके, की रिजल्ट फॉर द लॉजिकल एफर्ट.
नंबर ऑफ स्टेजेस, ये आपने सबका सारी स्टेजेस के लिए जो पाथ एफर्ट निकाल लिया, प्लस पैरासिटिक डिले. Okay, so from here you can see this the delay of the path can be estimated knowing the only the number of stages, that is your n, path effort, that is your f, okay, and parasitic delay, that is your p. Okay, so only three parameters required for calculating the delay. Okay, minimum delay, पाथ एफर्ट आपको पता होना चाहिए, ओके, नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है उसमें, और प्लस पैरासिटिक कैपेसिटेंस. ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे कैपिटल पी लिख रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पी आई. ओके, दैट इज योर समेशन, नॉट मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो कैपिटल पी इज हियर. Okay, so in this way we can calculate the delay, minimum possible delay. Okay. So this is all about your delay in multi-stage network. Okay. So lecture 12 and lecture 24 both are same, okay, because it is repeated 2 times in syllabus. Okay. So I am posting here only lecture this 12, and I also post in unit 3 lecture by name 24. Okay, so thank you students.